وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ دیر تک سنیں گے کہ اب ختم کر دیا جائے، 10 منٹ اور سنیے، وقت بھی تو زیادہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ جو اس کے بندے اس کا نام لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بہت خوش نصیب ہوتا ہے، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی لوگ جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی لوگ جس کو سرکار بلاتے ہیں، اور ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجمیر وہی جاتا ہے جس کو خواجہ بلاتے ہیں۔ اجمیر وہی جاتا ہے جس کو خواجہ بلاتے ہیں۔ اور ایک شعر کربلا کے حوالے سے کہ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں۔ وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے میں ڈھال نہیں۔ اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں مال، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ اور زمانہ 1 کروڑ پانے پہ کتنا مچلتا ہے، زمانہ 1 کروڑ پانے پہ کتنا مچلتا ہے، در خواجہ پہ اتنے کا لہبان جلتا ہے۔ در خواجہ پہ اتنے کا لہبان جلتا ہے۔ دوستو، ہم اور آپ شادی خانہ کے موقع پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، شادی خانہ آبادی بھی ہے، گھر کی بربادی بھی ہے۔ دوسری چیز، جب انسان اس کام کو، میں بتاؤں کہ کوئی بھی ایسا کام ہو جو نیک ہو، انسان جب کرنے کے لیے سوچتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے سوچا کہ کوئی شعر ایسا آ جائے گا کہ میں کہوں گا سبحان اللہ، آپ کہیں نہیں، اس کے پیریڈ سے بھی، اس سے پہلے بھی آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ کل سے میں نماز پڑھوں گا تو آج سے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کا کریمی دیکھیے، لیکن یہی جب آپ گناہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تب گناہ نہیں ملتا ہے، حتیٰ کہ جب تک آپ کر نہ لیں۔ دیکھیے اللہ کا کریمی ہے۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کو اپنے خوب یاد کریں۔ ہمارے یہاں جو عمر آپ کو ملتی ہے 50 سال، 30 سال، 10 سال، اس میں جتنا بھی عمر اللہ آپ کو دے، اس میں خوب اللہ کو اپنے یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے۔ آپ ایسا مت سمجھیے کہ ہمیں تو بس یہی ہے، ناچ گانا جو بجا لیا سو بجا لیا، جو کر لیا سو کر لیا۔ ایسا نہیں ہے دوست۔ قبر میں آئیں گے، منکر نکیر سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ہم مانتے نہیں، اپنے تقریروں میں برا بھلا کہتے ہیں، وہ پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے ہو؟ اب یہ نہیں پوچھیں گی کہ اب کیا کہہ رہے ہو ان کے بارے میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر دیوانہ ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، تو یہی کہے گا کہ تو ہے محبوب خدا، کس کا ہوا ایسا نصیب،
कौन है तेरी तरह मालिको मौला के करीब। ऐ शह जुदो सखा व सब्र व सदाकत के नकीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारे नबी। दोस्तों मैं बताऊं कि इंसान को अपने रब को बहुत याद करना चाहिए। दोस्तों मैं बताऊं कि जब कोई एक मालिक अपने नौकर को बहुत सारा पैसा दे देता है, दिहाड़ी से ज़्यादा कुछ माल दे देता है, तो कहता कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, उसकी बुराई करना नहीं चाहता। लेकिन हम और आप इतने गिर गए हैं जो अपने मालिक को याद नहीं कर पाते। दोस्तों देखिए, हम तो कहने के लिए मुसलमान हैं, लेकिन बताइए कि कुछ लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, मैं उनको मुसलमान कहना दुरुस्त नहीं समझता। बताइए कि आप लोग मुसलमान हैं भैया? बताइए कहाँ का तहजीब है, मिलाद हो रही है, सर पे टोपी नहीं। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। बताइए, हर एक चीज़ के लिए सिस्टम होता है। आप ये बताइए, हम इसको सर पे रख के मिलाद पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा? अब मोजा है, उसको हाथ में पहन लीजिए दस्ताने के तौर पे ठंडी में, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सिस्टम बना दिया गया है, जो जहाँ हो वहीं पर रहना चाहिए। हम और आप मुसलमान, अभी हजरत ने ऐलान किया कि कौन कौन सा बच्चा है कि नबी का नाम पढ़े, तो बताइए कि कितने बच्चे हैं जो नबी का नाम पढ़े? मुसलमान को हर एक बच्चे को चाहिए कि अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ा सके। आज लोग कहते हैं कि जनाजे में मौलाना साहब नियत बता दीजिए। बताइए, जिस कौम को नियत नहीं आती हो उसकी पूरी स्थिति क्या होती है? बताइए, हम तो अपने बच्चे को 10,000 फीस देके, 12,000 फीस देके 1 महीने के कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, वो भी क्या सीखने के लिए? APPLE एप्पल, एप्पल माने से, DOG डाग, डाग माने कुत्ता। तो क्या कहेंगे, या अल्लाह ताला ये कुत्ता, ये सेव, ये बिल्ली हमारे बाप के कब्र में भेज दे। काश कि अपने आप को और अपने बच्चों को ये तालीम देते कि सूरह फातिहा पढ़ के सुबहान अल्लाह कह के कम से कम हमारे कब्र में जो अजाब हो रही है इसके लिए दुआ कर दे, ताकि वो अजाब खत्म हो जाए। कभी ये आपने नहीं सोचा? दोस्तों, कोई मौलाना, कोई आलिम ये नहीं चाहता कि अपने आप को डॉक्टर या प्रोफेसर मत बनाइए। सब चाहता है कि ज़रूरत भी है बनाइए, लेकिन अपने बच्चे को इस काबिल बनाइए ताकि आपके कब्र पर जब अजाब हो तो कुछ पढ़ सके। दोस्तों मैं बताऊं, एक वाकया ऐसा है कि जब एक जो बहुत बड़ा शराबी था, इंतकाल हो गया, और इंतकाल से पहले अपनी बीवी से वसीयत करके गया था कि मैं तो अपने रब को खूब नहीं याद कर पाया, लेकिन जो तेरे कोख में बच्चा पल रहा है तो इसको इल्म दीन बनाना, इल्म सीखने वाला बनाना। बैठ जाओ भैया, कहाँ खड़े हो? तो इल्म सीखने वाले बनाना और हाफिज कुरान बनाना, ये वादा करके उसका इंतकाल हो गया। मुख्तसर में बता रहा हूँ। तो इंतकाल हो गया तो एक बुजुर्ग की उस कब्र से गुजर हुई, तो क्या देखते हैं कि उसके कब्र में आग के शोले हैं जो ललकाया जा रहा है, और उस शोले में वो आदमी जल रहा है। लेकिन जब कुछ दिन के बाद आया, जो उस कब्र को देखा, तो कब्र एकदम रोशनी है, मुनव्वर है, गुलाब का खुशबू आ रही है उसमें। सुभान अल्लाह। तो उस फकीर ने, उस आदमी ने, उस बंदे ने दुआ की रब के जानिब से कि या अल्लाह ताला, ये कौन सा ऐसा नेकी किया है जो मैं पहले आया अजाब हो रहा था, अब आ रहा हूँ तो आराम से सोया हूँ। तो रब की जानिब से निदा आई और हुक्म हुआ कि इसका लड़का मेरा नाम ले रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं इसको कब्र में जलाऊं तो मुझे गवारा नहीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने रब को खूब याद करें, और शादी करना, सरकार फरमाते हैं कि शादी करना, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो सुन्नत से मेरे मुंह फेर दे वो मेरे में से नहीं। और सबको चाहिए कि ये नेक और काम करना चाहिए। देखिए, इस्लाम ऐसा वाहिद मजहब है जो गरीब को खाना खिलाने भी सवाब मिलता है।
सुभान अल्लाह, खुद नहीं खाते औरों को खिला देते, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। दोस्तों हमें और चाहिए और आपको अल्लाह को अपने खूब याद करें। दोस्तों बयान किया जाए तो रातें कम हो सकती है, लेकिन उसके एक बिस्मिल्लाह का नुक्ता बयान नहीं हो सकता। हमारे और आपकी बस की बात नहीं है कि उसकी जो शान जो बयान कर सके। बस दोस्तों यही है कि हमें और आपको नमाज पढ़ना चाहिए। अब ये वादा करें, कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठा के दीजिए। इतने लोग नमाज पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह, सब लोग नमाज पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ, एक वक्त की आप नमाज घर में पढ़ के देखिएगा कितना मज़ा आता है। दोस्त मैं बताऊँ, दौलत तो आप बहुत कमाते हैं, वक्त नहीं मैं बयान करता। एक बिल गेट्स का नाम सुने होंगे आप, बहुत बड़ा अमीर है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कि मैगजीन में वगैरह में आता है कि लिखने में कि अगर उसका $100 गिर जाए और वो उठाए उतने देर में, उससे ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है। अब मैं बताऊँ, इंडिया का $100 उसके यहाँ के 7,000 होंगे, 7 या 8,000 के करीब में होंगे, और उतना झुक के उठाने में उसका समय लगेगा, उससे कई गुना ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्त आप बताएं, वो मर जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? मुकेश अंबानी है, क्या जियो का सिम लेके जाएंगे महाराज के पास? कोई नहीं लेके दोस्त जाएगा, सब यहीं छोड़ के जाना है। जो लेके जाना है हमें उसकी तैयारी करना चाहिए। दुआ है रब की बारगाह में अल्लाह ताला हमको और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।